Start recording. Yes, recording is started. Hello, dear students of class ninth. So we are going through the chapter which is a drama. Of course, it is a comedy drama. If I Were You. Okay, so we have come to know that Gerard, a man, rather I should say a mysterious man. Okay, a mysterious man because he is not much social, and very less people visit his house means his cottage. Okay, so his nature and his work suspicious, that's why he is a mysterious man. Okay, one day what happened, one intruder, of course a criminal broke into his cottage. ठीक है. अच्छा, if I ask you what does mean by break into, so what will say, क्या बोलोगे? तोड़ ताड़ के घुस जाना? Game. हाँ बेटा. ब्रोक इनटू का मतलब क्या होना चाहिए? जल्दी से गूगल कर लो. Sir, forcefully came. Forcefully and without asking permission. Okay, when you enter somewhere in a room or in a house without permission, forcefully, so that is called broke into. Yeah, break into. So the intruder broke into the cottage of Gerard, and what was his intention? His intention was to take the identity of Gerard so that he could live without any problem. And what was his problem? Of course, cop was at the back of him. ठीक है. Okay, so that was the intention of the intruder. That means he wanted to be Vincent Charles Gerard. ठीक है, ये पूरा नाम है गेरार्ड का, विंसेंट चार्ल्स गेरार्ड. Okay, so I think today we have to start from here. What do you say? We have completed this much. Apparently, you haven't the intelligence to ask why I am invested in this cloak of mystery. ठीक है. So actually, the intruder got few information of Gerard. Yeah. The intruder saw Gerard conversing with few people in a car. So, intruder knows very little about Gerard. Clear? So, here in the cottage, if I ask you why, there is a long conversation in between Gerard and intruder. Okay, because the thing is that Gerard, of course, he is in a trouble. Gerard is in a trouble because the intruder has a revolver. So of course, कोई भी revolver लेके आपके सामने आएगा तो of course he will be afraid of, he will be frightened. So here Gerard is also frightened, but he is a man who can handle the situations wisely. ठीक है. Here he is playing cleverly, wisely with the intruder, but the intruder is not getting the point. ठीक है. And you can see that the intruder is he is saying ki I have a brain, I am very clever. So a man who is really clever, a man who is really intelligent, uh, the man will not always say that I am a clever man. I have a brain. ठीक है. Here Gerard has not told for a single time that he is a clever man, but he is a clever man. Now you are going to see the plan, the plan which Gerard had in his mind. ठीक है. तो आज यहाँ से पढ़ते हैं. तो कौन बनेगा भाई इंट्रूडर, जल्दी बताओ. Who is going to be the intruder today? Yes, Bhavya, you want to be? Hello.
Yes, students, good morning. Wake up. So choose. Acha, Pari Jan wants to read. Okay, very nice. So Pari, you be the intruder, and Ishika, you can be Gerard. Yes, Pari, unmute yourself. I think any issue is there? Pari Jan. No, sir. Okay, so you be the intruder. Okay, and Raghav is there. Okay, Raghav, you be the Gerard. Fast. Pari and Raghav. Pari intruder. Raghav Gerard. नाम भी मैच कर रहा है राघव गिराड. Okay, continue. Preparing to shoot. As I said before, this conversation bores me. Yes, Raghav, where are you? Yes, sir. Don't be a fool. If you shoot, you will hang for sure. If not as yourself, then as Vincent Charles Gerard. What is this? This is your big surprise. I said you wouldn't kill me, and I was right. Why do you think I'm here today and gone tomorrow? Never see tradespeople. You say my habits would suit you. You are a crook. Do you think I am a Sunday school teacher? The game's up as far as I'm concerned. Things went wrong with me. I said it with bullets and got away. Unfortunately, they got one of my men and found things the fool should have burned. No, tonight I'm expecting trouble. My bag's packed, ready to clear off. There it is. Okay. Just a minute, Pari. So see, here you can see that what is Gerard. ठीक है? इसको इंट्रोडक्टर को कहा कि this is your big surprise. I said you wouldn't kill me, and I was right. Why do you think I am here today and gone tomorrow? Never see tradespeople. You say my habits would suit you. You are a crook. Do you think I am a Sunday school teacher? So Sunday school teacher in the sense, uh, a very polite, okay, a good a good man actually. Sunday school teacher. ठीक है, a man who is very nice and goes to school on Sunday also to work. So here, actually, Gerard is trying to say, कि, don't you think that I am a common man or I am a very simple person? ठीक है? तो उन्होंने फिर ये कहा, the game's up as far as am concerned. Things went wrong with me. I said with bullets and got away. Unfortunately, they got one of my men and found things the fool should have burned. Tonight, I'm expecting trouble. My bags are packed, ready to clear off. There it is. So, यहाँ पर गिराट बोल रहे हैं कि he is also a criminal. ठीक है? Rather you should say smuggler. ठीक है, जो स्मगलिंग करते हैं गोल्ड का, ड्रग्स का. ठीक है, गिराट अपने आप को स्मगलर बोल रहा है, लेकिन क्या ये सच है? ये तो पता चलेगा ड्रामा के एंड में. ठीक है. सो द गिराड हैज सेड कि you intruder, you don't know who I am a smuggler, and yes, I had also यहाँ पर बोला है ना, I said it with bullets. मतलब मैंने भी मर्डर किया है. I have also, just like you. इंट्रूडर ने भी किसी एक कॉप को गोली मारा था, है ना? ऐसा कहानी उन्होंने सुनाया. तो गिराड ने भी सुना दिया कि मैंने भी किसी को बुलेट से जवाब दिया. लेकिन अनफॉर्चुनेटली दे गॉट वन ऑफ माय मेन. मतलब अब वो स्मगलर का लीडर है, मतलब गिराड, उनके अंडर कुछ लोग काम करते हैं. तो एक आदमी पकड़ा गया है. ठीक है, और क्यों पकड़ा गया है? क्योंकि फाउंड थिंग्स द फूल शुड हैव बर्न. मतलब कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हाथ लग गया होगा, या कोई ऐसा सुराग उनको हाथ लग गया होगा जिससे जिसको जला देना था. इसीलिए यहाँ पर उस
उसको फूल कह रहे हैं उस आदमी को जो पकड़ा गया, उस गधे को वो सब डॉक्यूमेंट्स या सुराग को जला देना चाहिए था, लेकिन नहीं जलाया, जिसके चलते वो पकड़ा गया। ठीक है, तो फिर आगे वो कहते हैं कि टुनाइट आई एम एक्सपेक्टिंग ट्रबल, माय बैग्स आर पैक्ड रेडी टू क्लियर ऑफ। तो आज मुझे लग रहा है कि पुलिस मेरा पीछा करते करते यहाँ पहुंच जाएंगे, इसीलिए इसीलिए मैं बैग पैक कर रहा हूँ और कल निकल जाऊँ। तो ये कहानी सुनाया इंट्रूडर को। अब इंट्रूडर का कंडीशन देखते हैं। यस परी, नाउ यू कैन कंटिन्यू, परी एंड राघव। It's a bag, all right. And this is a gun, all right. What all this? That's a disguise outfit, false mustache, and whatnot. Now, do you believe me? I don't know. For God's sake, clear that muddled head of yours and let's go. Come with me in the car. I can use you. If you find it's a frame, you have got me in the car and you have still got your gun. Maybe you are right. Then don't waste time. Careful, boss. I'm watching you. I have got a man posted on the main road. He'll ring up if he sees the police, but I don't want to leave. Come on, they're after us. Through here straight to the garage. How do I know that you are telling the truth? Oh, don't be a fool. Look for yourself. Yes, so now what's the conversation, दोनों के बीच में क्या बातचीत हो रहा है? तो ऑफ कोर्स वी नो दैट कि गिराज जो है एक बैग पैक कर रहा था, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि इस बैग में क्या है। तो इंट्रूडर कह रहा है इट्स अ बैग, ऑलराइट, एंड दिस इज अ गन, ऑलराइट, व्हाट्स ऑल दिस? गिराज कह रहा है कि दैट्स अ डिस्गाइज आउटफिट, false mustaches, and of course what not. Now do you believe me? Okay, so inside the bag which Gerard was packing, उसमें क्या था? मुस्टैश, मूछे, उसके बाद मेकअप के सामान। तो गिराड ने कहा ये सब किस लिए है? ये सब डिस्गाइज आउटफिट है। डिस्गाइज मतलब आई थिंक यू नो व्हाट डज मीन बाय डिस्गाइज। क्या होना चाहिए डिस्गाइज का मतलब? Yes, my dear students, any answer from your end? सर भेष हाँ बदलना। हाँ, गुड। जब आपको अपना आइडेंटिटी छुपाना है तो आप अपना भेष बदल सकते हो, डिस्गाइज। ठीक है? तो ये एक्चुअली अभी तक हमें पता नहीं गेराट क्या करता है। ठीक है, तो ये जो उनके बक्से में मुस्टैशेस और मेकअप का सामान और प्रॉप्स ये सब जो रखा है वो किस लिए रखा है अभी तक नहीं पता, लेकिन अभी तक तो हमें ये लग रहा है कि हाँ सच में गिराट जो है स्मगलर है और वो पुलिस से बचने के लिए डिस्गाइज डिस्गाइज आउटफिट, ओके, डिस्गाइज आउटफिट इस्तेमाल करेंगे। वो ही विल यूज डिस्गाइज आउटफिट टू टू बी सेफ फ्रॉम द पुलिस। ठीक है, तो नाउ डू यू बिलीव मी? जब ये गिराट ने पूछा तो इंट्रूडर कहा ओके, आई डोंट नो। गिराट, फॉर गॉड्स सेक क्लियर दैट मडल्ड हेड, मडल्ड मतलब कंफ्यूज्ड। ठीक है, क्लियर दैट मडल्ड हेड ऑफ योर्स एंड लेट्स गो। कम विथ मी इन द कार, आई कैन यूज यू। इफ यू फाइंड इट्स अ फेम, यू हैव गॉट मी इन द कार एंड यू हैव स्टिल गॉट योर गन। तो यहाँ पर इंट्रूडर को भरोसा दिलाया। गिराड ने इंट्रूडर को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में ले लिया, उनको भरोसा दिलाया कि अरे तुम अभी अपने दिमाग से जितना भी कंफ्यूजन है उसको निकालो और मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो कार में। ठीक है, आई कैन यूज यू इफ यू फाइंड इट्स अ फ्रेम। फ्रेम मतलब प्लान, अगर तुम, या फिर ट्रैप। ठीक है, यहाँ पर फ्रेम का मतलब ट्रैप। अगर तुम्हें लगता है कि ये एक ट्रैप है, एक जाल है, तो ठीक है ना, तुम्हारे पास तो गन है, यू हैव स्टिल गॉट योर गन, यू कैन शूट मी एनी टाइम। ठीक है, इस ये बात बोल के और थोड़ा सा इंट्रूडर का भरोसा जीत लिया गिराड ने। नेक्स्ट इंट्रूडर कह रहे मे बी यू आर राइट, ओके चलते हैं आगे। क्या
Gerard, then don't waste time. Goes and picks up hat and bag. तो गेराट तैयार हो गया निकलने के लिए, और इंट्रूडर भी, हालांकि इंट्रूडर थोड़ा सा मतलब सस्पेंस तो था, थोड़ा सा डाउट था उनको, लेकिन चलो कोई बात नहीं, अब इसके अलावा रास्ता भी तो नहीं है उनके पास। तो इंट्रूडर उनको डराया, केयरफुल बॉस, आई एम वॉचिंग यू, ध्यान रखना, मैं तुम्हें देख रहा हूँ। गेराट कह रहा है कि आई हैव गॉट अ मैन पोस्टेड ऑन द मेन रोड, ही विल रिंग अप इफ ही सीज द पुलिस, बट आई डोंट वांट टू लीव। टेलीफोन बेल रिंग्स, कम ऑन, दे आर आफ्टर अस, थ्रू हियर स्ट्रेट टू द गैरेज। तो देखो क्या जबरदस्त टाइमिंग है। आपको याद होगा जब ड्रामा शुरू हो रहा था, एट दैट टाइम गेरार्ड वाज स्पीकिंग विद समवन ओवर द टेलीफोन। ओके, सो नाउ व्हाट गेरार्ड इज सेइंग कि मैंने एक आदमी को रोड पे, मेन रोड पे रखा है, वो हमें फोन करेंगे अगर वो कोई पुलिस को देखता है, तुरंत तुरंत इन्फॉर्म करेंगे। और जैसे ये बात उनका खत्म ही हुआ कि उनका टेलीफोन बजने लगा। सो दैट इज कॉल्ड अ नाइस कोइंसिडेंस। ठीक है, तो जैसे टेलीफोन बजा तो गेरार्ड ने क्या, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, दे आर आफ्टर अस, पुलिस लोग आ गए हैं, थ्रू हियर स्ट्रेट टू द गैरेज। तो उन्होंने एक दरवाजा खोला, ये वाला जो यहाँ पर इमेज दिख रहा है ना, एक दरवाजा उन्होंने खोला और बोला कि हाँ इसी रास्ते से हम गैराज तक पहुंचेंगे जहां पर हमारा कार है, और कार में बैठ के हम यहाँ से भाग जाएंगे, रफू चक्कर। ठीक है, यू मस्ट हैव हर्ड वर्ड रफू चक्कर। तो अब आगे क्या होता है देखते हैं। तो इंट्रूडर बोल रहा है, हाउ डू आई नो दैट यू आर टेलिंग द ट्रूथ। तो दरवाजा जब उन्होंने ओपन किया और बोला कि इस रास्ते से हम सीधा गैराज तक जा सकते हैं, तो इंट्रूडर के मन में थोड़ा सा डाउट हुआ। तो उन्होंने पूछा कि मैं आप पे कैसे भरोसा कर सकता हूँ। गेरार्ड बोल रहा है, ओह डोंट बी अ फूल, लुक फॉर योरसेल्फ। तो गेरार्ड फिर बोले, क्या बेवकूफ भरी बातें करते हो, ठीक है, लुक फॉर योरसेल्फ, तुम खुद ही समझ लो, देख लो। So Gerard opens door and steps away. Intruder leans forward to inspect it, with his side towards Gerard, but with the revolver ready. As he turns his head, Gerard gives him a push into the cupboard, knocking the revolver out of his hand. He slams the door and locks it. Picks up the revolver and goes to the phone, where he stands with the gun pointed at the cupboard door. So this was the plan. ठीक है, गेरार्ड ने क्या किया, एक्चुअली वो दरवाजा नहीं था, आई मीन इट वाज नॉट अ डोर टू द गराज, इट वाज एक्चुअली अ कपबोर्ड। ठीक है, हमारे घर में होता है। तो इंट्रूडर से बचने के लिए उन्होंने ये प्लान किया था, और इंट्रूडर को पता भी नहीं चला। तो अब समझ में आ रहा है कि हु इज क्लेवर, who has a brain। ठीक है, तो सिंपली उन्होंने क्या किया, इंट्रूडर को भरोसा दिलाया कि हाँ ये वही दरवाजा है, यहाँ से आप आगे जा सकते हो। तो जैसे ही इंट्रूडर उसको इंस्पेक्ट करने गया, मतलब जांचने गया कि हाँ ये दरवाजा है कि नहीं, ठीक है, तो जैसे ही थोड़ा सा वो अंदर देखने लगे, झांकने लगे, लीन मतलब झुक के या बेंड होके झांकना, तुरंत तुरंत गेरार्ड ने क्या किया, उनको एक धक्का धक्का मारा, वो कपबोर्ड के अंदर चले गए। और उनका हाथ जो है, मतलब जिस हाथ में रिवॉल्वर था, वो रिवॉल्वर एक्चुअली वो पॉइंट करके रखे थे गेरार्ड के तरफ। तो जस्ट इमेजिन सिचुएशन ये है, गेरार्ड पीछे है ना, और जो इंट्रूडर है वो कपबोर्ड के दरवाजा खोल के अंदर झांक रहा है। मतलब उनका फेस जो है गेरार्ड की तरफ नहीं है, फेस किस तरफ है, कपबोर्ड की तरफ है, लेकिन गन जो है वो गेरार्ड की तरफ है। तो गेरार्ड ने चालाकी से उनको एक धक्का मारा, वो अंदर चले गए, लेकिन हाथ जो था वो कपबोर्ड के बाहर ही था। तो दरवाजा ऐसे जोर से बंद किए कि उनको गन फेंकना पड़ा। रिवॉल्वर जो है वो अभी किसके हाथ में है, गेरार्ड के हाथ में है। और जो इंट्रूडर है, जो कि अपने आप को बहुत होशियार समझता है, वो अभी कपबोर्ड के अंदर है। ठीक है, फिर उन्होंने मतलब गेरार्ड ने एक कॉल करेंगे, को कॉल करेंगे, देखो, इंट्रूडर rattles door and shouts। rattles मतलब जोर जोर से उसको धक्का मारना, उस पर थपथपाना। ठीक है, ठीक है, डोर को बहुत जोर से उन्होंने स्लैम किया और
उन्होंने चिल्ला के बोला, लेट मी आउट ऑफ हियर। गेरार्ड फोन पे किससे बात कर रहे देखो, हेलो, yes, speaking. Sorry, I can't let you have the props in time for rehearsal. I haven't I haven't at a spot of bother. Quite amusing. I think I will put it in my next play. Listen, can you tell your friend, the surgeon, who to come up here at once? You will probably find him in the public bar. So yes, now the drama ends, and you can see कि अब अब गेस कर सकते हो कि गेरार्ड एक्चुअली क्या काम करता है। गेरार्ड जो बोल रहे हैं, गेरार्ड क्या बोल रहे हैं कि सॉरी आई कांट लेट यू हैव द प्रॉप्स इन टाइम फॉर रिहर्सल। तो उनके बैग में था प्रॉप्स, ठीक है, जो मुस्टैश या मेकअप मटेरियल्स जो भी थे वो सब प्रॉप्स उनके बैग में था। तो ये किसी प्ले के लिए है, कोई प्ले मतलब ड्रामा, कोई प्ले के लिए था, ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि आई हैव हैड अ स्पॉट ऑफ बॉदर, बॉदर मतलब डिस्टरबेंस, ठीक है। यहाँ पर डिस्टरबेंस किसको बोल रहे हैं, इंट्रूडर को। उन्होंने कहा कि एक प्रॉब्लम आ गया था, इसीलिए मैं प्रॉप्स को जो है इन टाइम पहुंचा नहीं सकता, मतलब टाइम पे नहीं पहुंचेगा, थोड़ा सा लेट हो जाएगा। अच्छा, उन्होंने ये भी कहा कि क्वाइट अम्यूजिंग, मतलब उनको भी मजा आया इंट्रूडर के साथ ठीक है। आई थिंक आई विल पुट इट इन माई नेक्स्ट प्ले। उनके साथ जो भी हुआ वो सोचे कि ये चीज जो है एक मस्त कहानी बन सकता है, बढ़िया, तो इसे मैं अपने नेक्स्ट प्ले में रखूंगा। लिसन वन मोर थिंग, कैन यू टेल योर फ्रेंड द सर्जेंट, सर्जेंट मतलब कॉप्स, पुलिस वहाँ के लैंग्वेज में, तो सर्जन को बोलोगे क्या मेरे यहाँ आने के लिए, यू विल प्रोबेबली फाइंड हिम इन द पब्लिक बार। मतलब सर्जन जो है तुम्हें कहाँ मिल जाएंगे, पब्लिक बार में, ठीक है। तो now see who is clever, it is clear to us, ठीक है। इंट्रूडर क्या बोलना चाहिए, he was a fool, ठीक है, he was a big fool, and but he was very dangerous, वो डेंजरस भी थे, क्योंकि यू नो व्हाट, fools are dangerous। तो गेरार्ड cleverly handled the situation, managed the situation. Of course he got out of the प्रॉब्लम। सो ये जो है इस ड्रामा में यही आपको समझना है, यू नीड टू बी व्हाट कैन यू से, वेरी क्लेवर एंड कूल एंड काम, वॉट एवर द सिचुएशन इज, ठीक है। डोंट बी पैनिक एंड डोंट लूज योर कंट्रोल। यहाँ पर अगर गेरा डर जाता, और कोई डर, अगर वो डर जाता तो वो प्लान भी नहीं बना पाता, ठीक है। व्हेन वी आर इन फियर, we are tensed, we can't prepare any plan. Okay, so now tell me, any one of you who has not understood the drama or any doubt, yes, you can ask. And there's a simple question for all of you, and the question is how this drama can be helpful for us, how this drama can be helpful for us। इस ड्रामा को पढ़ने के बाद हमारा क्या हेल्प होगा, बताओ। यस माय डियर लवली स्टूडेंट्स, बताओ जल्दी, उसके बाद मैं लिंक शेयर करूंगा रिवीजन टेस्ट के लिए, ठीक है, जल्दी से। Raghav, in America it is lieutenant, and in Britain it is lieutenant. Both are correct. Just it depends on the accent. Okay. In India we pronounce lieutenant because Britishers, you know, they ruled our country and we have grabbed their accent. Okay. I think the show belongs to America, Raghav Agarwal.
Yes. So yes, Harit. ब्रुकलिन 99, तो ऑफ कोर्स इट इज अमेरिका, तो वहाँ ल्यूटेनेंट ही बोलते हैं, ल्यूटेनेंट। हाँ, सो यहाँ पर हरित जो लास्ट है, लास्ट डायलॉग, उस समय पता चल रहा है कि यस, ही कैन बी अ प्ले राइट और ही कैन बी अ कैरेक्टर ऑफ प्ले। ठीक है। सो उनके बैग में क्या था? प्रॉप्स था, ठीक है, मेकअप मटेरियल्स था, जो कि मतलब एक प्ले में कोई भी रोल अदा करने के लिए, कोई रोल प्ले करने के लिए, कोई ड्रामा में ये सब की जरूरत था। कोई मतलब उस दिन एक ड्रामा था और ये उस ड्रामा में ये सब जो प्रॉप्स से पहुंचाना था, और जिसके लिए वो निकल ही रहे थे कि इंट्रोडर आ गया था। इसीलिए जो फोन में सामने वाला बंदा जो था, वो कौन था ये हमें नहीं बताया गया है। तो जिनसे भी वो बात कर रहे थे, ऑफ कोर्स उनके जानकार है, फ्रेंड है। उन्होंने कहा कि सॉरी, आई कांट लेट यू हैव द प्रॉप्स इन टाइम फॉर रिहर्सल। मतलब ड्रामा के पहले एक बार रिहर्सल होना जरूरी है, तो रिहर्सल के लिए जो प्रॉप्स है, मैं तुम्हें टाइम में, वक्त में पहुंचा नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ। और वो जो लेट किसके लिए हुआ आपको पता ही है, इंट्रोडर के लिए लेट हुआ, है ना? ओके, सो लेट मी शेयर द लिंक. Okay, so my dear students, in this revision, you get objective type questions and of course, what do you say? Subjective question. Okay. For subjective question, you have to write on a page and then upload. Clear? Okay. So Sir, till when we have to submit it? today itself, by the evening. Okay. Yes, sir. Yes, I think you have got the link, all of